Welcome students in biology class. In previous slide we described about the air. Okay. How can the wind or movements? Today we describe a very important topic that is known as the pollution. And you know about them, this is the very important topic today because through the pollution there are different type of disease occurs which are affected directly of the life living organisms. Okay, this pollution that is the harmful for all living organisms. It damages our industrial process, living condition and cultural assets. Okay, there are many type of pollutions that is occur on the earth surface which are directly or indirectly affect the our environment as well as also affect the living organisms. Okay, तो फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज द पोल्यूशन. पोल्यूशन होता क्या है? पोल्यूशन इज any undesirable change in the physical, chemical or biological properties of air, land, water or soil. ठीक है, दैट इज क्लियर. ये इसको याद कर लीजिएगा. व्हाट इज द पोल्यूशंस? पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल. मतलब एयर, लैंड, वाटर और सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो करेक्टर है उसका यदि उसमें चेंजेज आते हैं, दिस नोन एज द पोल्यूशंस. So how can the pollutions occurs? So there is another term that is known as the pollutants. The agents that cause pollution that is known as the pollutants. That is clear? The agents that cause pollution is known as the pollutants. Based on the part of environment that is polluted, pollution is different types. कई तरह के पोल्यूशन होते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक एयर पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशंस एंड सॉइल पोल्यूशंस. फर्स्ट वी डिस्क्राइब अबाउट द व्हाट इज द एयर पोल्यूशंस. तो डिफिनेशन वही रहेगा, केवल वहाँ हम एयर यूज करेंगे, लैंड, वाटर, सॉइल हटा देंगे. ठीक है, क्या होगा डिफिनेशन? व्हाट इज द definition of air pollutions? Air pollution is any desirable change in physical, chemical or biological properties of air is known as the air pollutions. That is clear? It is the one of the most common and dangerous pollution caused by air pollutants in our atmosphere. Different pollutants are present in atmosphere which cause the affect the air. Air pollution can be defined as, another way we also describe them, an increase in the content of the harmful substances in air. एयर में हार्मफुल जो कंटेंट है वो इंक्रीज करे. सो दिस इज कॉज द एयर पोल्यूशंस. दैट इज क्लियर? Thus, degradation of air quality and natural atmospheric conditions constitutes air pollutions. On the basis of sources, air pollution can be grouped as follow. On the basis of sources of air pollution, they are grouped into the different categories. Just like you see here, sources of air pollutions. There are two main sources. One is the natural sources, another is the anthropogenic or man-made sources. Natural sources में क्या है? This includes pollen grain, dust,
smoke, spores and pathogens like bacteria, viruses, etc. जो नेचुरल एयर पोल्यूशन कॉज करता है उसमें पॉलन ग्रेन है. यू नो अबाउट द पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर देयर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के समय क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, मेल जर्म होते हैं, वो थ्रू द एयर, थ्रू द इंसेक्ट, through the water that is moved from one place to another. That is clear. Dust, just like a different type of disease, fungal disease होता है. You see in case of wheat field or in case of rice field, पूरी पूरी जो कॉर्न होती हैं, बालियाँ होती हैं, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है या ब्राउन हो जाती है. दिस इज द अफेक्टेड बाय द पैथोजन, फंगस होता है. ठीक है, वो डस्टिंग फॉर्म में जब एयर फ्लो करता है तो उसके साथ डस्ट के रूप में वो पूरा स्प्रेड होते हैं फील्ड में. स्मोक, जो दैट इज फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है उसके द्वारा जो स्मोक रिलीज होते हैं, दैट इज आल्सो हार्मफुल फॉर आवर लाइफ. स्पोर्स, सम स्पोर्स दैट इज आल्सो रिलीज जस्ट लाइक ए डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज द स्पोर डिस्पर्सल अकर्स. उसके स्पोर्स ही वो डिस्पर्स होते हैं. ठीक है. पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, इसके जो वायरल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में आपको प्रेजेंट रहते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ पैथोजेंस होते हैं, जैसे फंगस के स्पोर्स हैं, बैक्टीरिया के स्पोर्स हैं, वायरसेस है, विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. सो दिस इज द नेचुरल रिसोर्सेज. दैट इज क्लियर. सेकेंड वी डिस्कस हियर इज द एंथ्रोपोजेनिक. इन एंथ्रोपोजेनिक यू सी हियर एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड सोर्सेस. इसमें दो तरह के सोर्सेस, वन इज द फिक्स सोर्सेस, अनदर इज द मोबाइल सोर्सेस. जो फिक्स्ड है, दिस इंक्लूड द लार्ज फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, मिनरल स्मेल्टर्स एंड डिफरेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज विच आर सिचुएटेड. जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है हमेशा वो रेगुलेट हमेशा क्या कर देंगे, दैट इज रिलीज द harmful gases into the environments. That is clear. दूसरा है मोबाइल सोर्सेज. दिस इंक्लूड्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स मूविंग बाय रोड्स, रेल और एयर. ठीक है, डिफरेंट व्हीकल्स विच आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द ट्रांसपोर्ट के लिए जो यूज़ करते हैं. ठीक है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, ट्रेन है, एरोप्लेन है, सब में क्या, दैट इज यूज द सम कंपोनेंट्स. और जब वो बर्न करता है, मतलब जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है, कोल है, जब वो बर्न करेगा तो दैट इज रिलीज द हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर. सो दिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस एयर पोल्यूशन कैन बी ग्रुप इनटू एज द टू कैटेगरी में डिवाइड किए, नेचुरल सोर्सेस एंड एंथ्रोपोजेनिक. एंथ्रोपोजेनिक में दो है, फिक्स्ड सोर्सेस एंड मोबाइल सोर्सेस. दैट इज क्लियर. Next one, on the basis of nature of pollutants. Pollutant के बेस पर यदि हम इसको कैटेगराइज करें तो ऑन द बेसिस ऑफ देम दिस एयर पोल्यूशंस इज ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरह के हैं. ओके, ये दो तरह के हैं. First one, that is the primary pollutants, another is the secondary pollutants. Okay, so what is included inside the primary pollutants? These are the pollutants which enter the air directly from a source. ठीक है, एयर इन्वायरमेंट में डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, DDT, फ्लाई एश, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर. Okay, this is the different components which are directly enter into the atmosphere. So this is known as the primary pollutants. Clear? Second one is the secondary pollutants. What is the secondary pollutants? These are not directly
emitted but are formed when primary pollutant react in the atmosphere. ये डायरेक्टली इंटर नहीं करता एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो पोल्यूटेंट है इसके फर्स्ट दैट इज रिएक्ट विद द प्राइमरी पोल्यूटेंट से रिएक्ट करता है, उसके बाद जो न्यू फॉर्म होता है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। जो सबस्टांस या कंपोनेंट फॉर्म होता है वो आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे ओजोन एंड पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN। कभी कभी इसका लिखने के लिए आता है फुल फॉर्म एग्जाम में आपको, PAN का फुल फॉर्म, तो इसका है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, पैन का आता है लिखने के लिए आपको एग्जाम में PAN। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, पर एसिटाइल नाइट्रेट ये भी है which are present in the atmosphere that are formed through the interaction or reaction between, ये कैसे फॉर्म होते हैं? रिएक्शन बिटवीन द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स and VDCS. What is the VDS? VDCS volatile organic compounds, ठीक है, which are present in the atmosphere in the presence of sunlight, that is react, that is form the secondary pollutants. That is clear? Yeah, PCS, there is another component that is also present in the atmosphere, फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं, PCS, एसिड रेन, ये सब क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। दैट इज क्लियर? ओके, you see there is the smoke that is released or through the factory, that are different type of gases which are released in the atmosphere which are directly affect the quality of air। ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज है, डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं, उससे जो स्मोक निकलते हैं दैट इज अफेक्ट द डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन? क्या अफेक्ट पड़ता है एयर पोल्यूशन का? मोस्ट ऑफ एयर वी ब्रेथ इज एलिमेंटल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मैक्सिमम जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं ब्रीथ के लिए उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड इन अबाउट 1%, दैट इज वेरी लेस अमाउंट आर प्रेजेंट। ओके, अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस 1% मे कॉज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू लाइफ एंड नेचर। उसका केवल 1% ही हमारे बॉडी के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो हार्मफुल है और नेचर के लिए भी हार्मफुल है। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट्स विच आर डिस्कस हियर। फर्स्ट वन इज द पार्टिकुलेट मैटर। व्हाट इज द पार्टिकुलेट मैटर्स? इट इंक्लूड्स सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और लिक्विड ड्रॉपलेट्स एरोसॉल। It comprises smoke, dust, asbestos, fibers, pesticide, biological agents like small dust, mites, spores, and pollen. This is the particulate matter. Okay. What is the effect? Environment को किस तरह अफेक्ट करते हैं? They reduce the temperature at the lower atmosphere. ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर इसको ये लोअर कर देते हैं, मतलब उसको रिड्यूस कर देते हैं। सेकेंड कंपोनेंट है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज द वेरी हार्मफुल गैसेस विच आर रिलीज बाय द अनबर्न ऑफ द फॉसिल्स फ्यूल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। पूर्ण रूप से जो दहन नहीं होता। कभी कोई बाइक या व्हीकल्स में देखते हैं बहुत ज़्यादा फ्यूम्स निकलता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो कम्प्लीटली बर्न होने का उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है।
ओके। ऑटोमोबाइल्स आर मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स। ऑटोमोबाइल्स जितने भी है वो मेन सोर्सेस है कार्बन मोनोऑक्साइड्स का। एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक, जो सिगरेट पी के स्मोकिंग करते हैं, दैट इज आल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स। एंड इट इज़ द हाईली पॉइजनस एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। यह बहुत पॉइजनस है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या करता है, जैसे हमारे बॉडी में जाता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो आपका हीमोग्लोबिन की होती है, उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाता, जिससे ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में कमी होने लगती है। इट कॉजेज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द बॉडी। ठीक है, इसके कारण बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। सफोकेशन एंड फाइनली डेथ, सफोकेशन होने लगता है और फाइनली क्या होता है, बॉडी डेथ हो जाती है। दैट इज क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड इज शॉर्ट लाइव्ड एंड गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एयर पोल्यूटेंट रादर ग्रीन हाउस गैसेस। यह एयर पोल्यूटेंट नहीं है, बट दैट इज आल्सो कॉज द ग्रीन हाउस गैसेस अफेक्ट ये कॉज करता है। मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत कम यह अफेक्टेड करता है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोकार्बन्स। Sulfur dioxide, you know about them, that is cause the acid rains. It is the produced by burning of sulfur. How can that produce in the atmosphere? That is produced by the burning of sulfur containing coals, ore smelter and oil refineries. इससे रिलीज होते हैं। A high concentration of sulfur dioxide in air causes severe रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। यदि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड हार्मफुल टू द प्लांट्स, प्लांट के लिए हार्मफुल भी है ये। दिस इज द इंडिकेटर, लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, पोल्यूशन का सल्फर डाइऑक्साइड का इंडिकेटर है लाइकेन। यदि उस एरिया से पूरा लाइकेन खत्म हो जाए, मीन्स दैट इज द, वहाँ पे एयर में सबसे ज़्यादा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। Next one is the nitrogen oxides. These are the produced by the combustion of fossil fuel at high temperature in automobile engines. These are nitrogen and oxygen. Nitrogen oxide मतलब उसमें nitrogen oxygen है। There are different components of oxide of nitrogen, 5 type होते हैं। That is also cause, that is formation of एसिड रेन। नाइट्रिक एसिड का ये फॉर्मेशन करता है, जिससे का एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। ओके। नेक्स्ट वन, स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक, PCS, फोटोकेमिकल स्मोक। इट इज कंपोज्ड ऑफ ओजोन। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, कंपोज्ड ऑफ ओजोन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन जो भी बताए थे हम, एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इट कॉजेज ब्राउन एयर एंड ग्रे एयर। ठीक है, इसके कारण ब्राउन एयर और ग्रे एयर हो जाता है। ब्राउन एयर इज फॉर्म अंडर इंटेंस सोलर रेडिएशंस, while gray air is formed in the laser solar radiations. ओके। स्मोक क्या अफेक्ट करता है बॉडी को, स्मोक मे डैमेज लंग्स ऑफ ह्यूमन एंड कोरोड्स द हेरिटेज बिल्डिंग सरफेस एंड डैमेजेस मार्बल स्टैचूज। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लंग्स को अफेक्ट करता है। कोरोड दो हेरिटेज बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सरफेस को उसको क्रोड करता है, मतलब खुदरा कर देता है। डैमेज द मार्बल स्टैचू, यदि मार्बल का कुछ बना हुआ है स्टैचू तो उसको भी यह अफेक्टेड करता है। एंड नेक्स्ट वन इज द एसिड रेन। व्हाट इज द एसिड रेन? The acid dissolve in the water and form the rain acid. So this is called the acid rain. How can they are formed? You see here. Acid rain क्या है? Nitrogen oxide and sulfur dioxide are produced in the atmosphere during the combustion of coal. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों
रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, किसके थ्रू? बर्निंग या कंबस्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। दीज आर हाईली रिएक्टिव इन एयर, या हाईली रिएक्टिव होते हैं एयर में, एंड रैपिडली ऑक्सीडाइज टू एसिड्स, और यह ऑक्सीडाइज होकर के एसिड का फॉर्मेशन करता है, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। दिस एसिड डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म रैन एसिड्स दैट वॉज आउट टू द ग्राउंड्स। ठीक है, एसिड फॉर्म होने के बाद वह रेन के साथ फॉल डाउन होता है, इसको हम एसिड रेन कहते हैं, एंड दैट इज लार्जली अफेक्टेड द एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, यू सी हियर हाउ कैन दैट इज फॉर्म हियर। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है? फर्स्ट कंपोनेंट जो है एसिड रेन का है सल्फ्यूरिक एसिड। हाउ कैन देयर फॉर्म? सल्फर दैट इज रिलीज थ्रू द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। दिस सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है वाटर पेपर एटमॉस्फेयर में एज वेल एज द ऑक्सीजन, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, मतलब O2, ये जब डिग्रेड हो जाता है O+O में तो इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। दिस नेसेंट ऑक्सीजन दैट इज कंबाइंड विद दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलर प्रोसेस दैट इज आल्सो अकर इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। दूसरा जो कंपोनेंट होता है एसिड रेन का वो नाइट्रिक एसिड होता है। कैसे बनता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स दैट इज रिएक्ट विद द ओजोन, ओजोन को पहले वो डिग्रेड करता है, ओजोन को जो O3 है दैट इज फर्स्ट डिग्रेडेड इनटू द ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक, अब ये जो NO2 था, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, O3 को डिवाइड करके इसमें ऑक्सीजन आपका रिलीज हो गया, एक ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करके NO2 बन गया। NO2 अगेन रिएक्ट विद द ओजोन, NO3 + O2 ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, या नाइट्रेट बन गया, नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 दैट इज फॉर्मेशन अनदर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन N2O5, या N2O प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, ये फॉर्म करते हैं। दिस इज द टू कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन्स। जो नेचर होता है एसिड रेन का, द pH ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5.6। एसिड हम कहते हैं 7 से अधिक कम है pH तो एसिड को शो करता है। तो एसिड रेन में जो pH होती है वो आपका 5.6 होता है। ओके, सो व्हाट इज द एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, हाउ कैन वी कंट्रोल देम? फर्स्ट वन, सुटेबल फ्यूल सेलेक्शंस and its efficient utilization to reduce pollutant level in emission। उस तरह का हम फ्यूल यूज़ करें, कम से कम बर्न करें जिसके, ठीक है, जिसके कारण जो पोल्यूटेंट इंक्रीज कर रहा था एटमॉस्फेयर में वो धीरे धीरे इमिशन उसका कम हो। चेंजिंग द पोल्यूटेंट टू अ लेस टॉक्सिक फॉर्म, पोल्यूटेंट को कन्वर्ट करके उसको हम लेस एक्टिव फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे लेड यूज़ किया जाता है पेट्रोल में, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। थर्ड वन, कलेक्टिंग द पोल्यूटेंट्स बाय द यूज ऑफ इक्विपमेंट टू प्रिवेंट इट escape इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन की भी बात कर रहे हैं तो क्या अफेक्ट करता है? एसिड रेन एडवर्सली अफेक्ट टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक वेजिटेशन। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है, जब एसिड उसमें फॉल डाउन होगा तो वाटर का भी, वाटर कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक कंडीशन में। एसिडिक कंडीशन में क्या होगा? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सम ऑर्गेनिज्म दैट इज डाइड बिकॉज एसिडिक कंडीशन में कुछ आपके मर जाएंगे ऑर्गेनिजम्स क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक्वेटिक जो प्लांट्स है दैट इज आल्सो अफेक्टेड। लो pH दैट इज एसिडिक कंडीशन डैमेज सॉइल माइक्रोबियल कम्युनिटीज। सॉइल में जो माइक्रोबियल होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं विच आर डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, वो भी क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। एसिडिक कंडीशन के कारण वो डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, इससे सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग मटेरियल एंड आवर हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल बाय द कोरोसिव एक्शन ऑफ एसिड डिपोजिशन। ठीक है, एसिड रेन के कारण क्या होता है? जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल है, यदि गए होंगे तो देखे होंगे सरफेस पर बिल्कुल वाइट है ताजमहल, लेकिन
ब्लैक ब्लैक पैचेस उस पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो ब्लैक पैचेस क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। अब एसिड फॉल वहाँ कैसे हो गया? क्योंकि जो मथुरा है, आगरा से मथुरा की जो डिस्टेंस है नियर अबाउट 60 किलोमीटर है, और यहाँ वहाँ पर जो एयर फ्लो करता है हमेशा मथुरा टू आगरा की तरफ होता है। और मथुरा में क्या है? ऑयल रिफाइनरीज है। ठीक है, ऑयल जो प्यूरिफाइड किया जाता है, नेचुरल ऑयल को। ठीक है, तो वहाँ से जो एयर फ्लो करता है उसके साथ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आता है, और यहाँ पर यमुना नदी है आपका, वहाँ से वेपर फॉर्म होता है जस्ट ताजमहल के बगल में यमुना। ठीक है, तो उस मॉइस्चर कंडीशन मतलब वाटर वेपर से वो रिएक्ट करके वो डायरेक्टली फॉल डाउन कहाँ होता है? ताजमहल जो बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, उसके कारण जो सरफेस है वो कोरोड हो गए हैं, खुदरे हो गए हैं, वहाँ ब्लैक पैचेस दिखते हैं। उसको समय समय पर लेप किया जाता है, उसको भरा जाता है। ठीक है, सो दिस द अफेक्ट ऑफ द एसिड रेन। ओके, thank you for watching the videos. If you like this video, that is subscribe and share it. Thanks.